हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोग ने लास्ट क्लास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट की थी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। हम लोग अभी तक बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी थी हमने शुरू के लेक्चर्स में। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोगों ने बॉन्ड फॉर्मेशंस पढ़े थे, जहाँ पे आपका सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, पाई बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, किस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। लास्ट हमारी बात हुई थी कि आपके पास तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। इन वन सिंगल बॉन्ड देयर इज वन सिग्मा बॉन्ड, a double bond contains one sigma and one pi, and a triple bond contains one sigma and two pi bonds. Now from here we can compare some values, we can compare bond lengths, bond energies, bond strengths and bond orders. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे bond strength की. You can call it bond strength और bond energy. See, bond strength or bond energy of a bond increases with number of bonds. There are three bonds, two bonds, one bond. So triple bond will have greater strength than a double bond, and a double bond will have a greater strength than a single bond. As number of bonds increases, the bond strength increases. Number of bonds is called bond order. What is bond order? Bond order is number of bonds between two atoms. For example, this bond order of triple bond is 3, 2 and 1. So we can directly say that bond strength is directly proportional to bond order. Greater is the bond order, higher will be the strength. As bond order increases, the strength of bond will also increase. Then we can also compare bond length. Always keep in mind bond length. Bond length is inversely proportional to bond order. That is, as bond order increases, bond length will decrease. That means a triple bond will be shorter than a double bond, and a double bond will be shorter than a single bond. So if you arrange them in the order of bond length, order will be single bond will be the longest, then a double bond, and then a triple. So we can compare these things, bond length and bond strength and bond order. As bond order increases, bond strength will increase and bond length will decrease. So this was the summarization of VBT. We have studied how single bonds are formed, how double bonds are formed, how double bonds or triple bonds are formed. We have studied how sigma bonds are formed and how pi bonds are formed. We have compared the strength of sigma and pi bonds. We have studied the concept of overlapping. Now we are moving forward with the second point of VBT, which is hybridization. It is very important. Hybridization is the main aspect of valence bond theory, and it explains the bonding in different types of molecules. To explain bonding in any given molecule, you will use the concept of hybridization. So what is hybridization? देखो, हम लोग इंडियंस जाने जाते हैं एक चीज के लिए, which is called जुगाड़. इंडियंस के पास हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम दे दो, कैसी भी कंडीशन हो, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार होता है, दैट इज जुगाड़. मैंने हाइब्रिडेशन को प्यार से एक नाम दिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? जुगाड़. देखो ये जुगाड़ क्या है, कैसे जुगाड़ होता है, हम देखते हैं. आप लोगों ने आज तक CH4 मॉलिक्यूल तो ऑब्वियसली बात है पढ़ा होगा. CH4 is methane. So in methane, each carbon atom will be forming 4 bonds with 4 hydrogen atoms. Since carbon and hydrogen both are non-metals, so these bonds will be covalent in nature. So covalent bonds will be formed between carbon and hydrogen. Each carbon atom will be sharing 1 electron with each hydrogen atom. Now, अब अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो सी कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? कार्बन का कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 2p2. So 2s2 2p. तो कार्बन
को हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। अगर उसे 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिन्हें वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, पेयर अप करेगा और क्या बनाएगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। यही पॉसिबिलिटी होगी। तो ये कार्बन है आपका, ये कार्बन हाइड्रोजन से बोलता है, ये कार्बन, यहां पे 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये कार्बन हाइड्रोजन के पास जाता है और बोलता है मुझसे बॉन्डिंग कर लो। तो हाइड्रोजन बोलते हैं क्यों करें, तो कार्बन कहता है देखो अगर तुम मेरे साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो तुम्हारा डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तुम भी स्टेबल मैं भी स्टेबल। हाइड्रोजन बोलता है बात तो सही कह रहा है, चलो बॉन्डिंग करने चलते हैं। एक चीज याद रखना, इनके बीच में यूनिटी बहुत अच्छी है। अगर बॉन्डिंग करेंगे तो चारों करेंगे, वरना कोई भी नहीं करेगा। तो ये चारों हाइड्रोजन यहां पहुंचते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन यहां पहुंचता है, देखो हमने पढ़ा है 2s और 2p की एनर्जी में डिफरेंस होता है। 2s इज एट लोअर एनर्जी लेवल एंड 2p इज एट हाई एनर्जी लेवल। सो दिस विल बी द कंफ्यूजन ऑफ कार्बन। नाउ यहां पे एक हाइड्रोजन एटम आता है। हाइड्रोजन एटम किससे बॉन्डिंग बनाना प्रेफर करेगा, जो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल पर होगा। तो हाइड्रोजन जाएगा 2s के पास और देखेगा कि यहां पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही पेयर्ड है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन है, इसको शेयर किसके साथ करेगा, भाई शेयरिंग के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को ऊपर जाना पड़ेगा। चलो वो ऊपर भी गया, जैसे ही ऊपर गया उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। फिर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, वो भी शेयरिंग कर लेगा। लेकिन उसके बाद तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो शेयरिंग कहां से होगी। तो ये हाइड्रोजन मना कर देंगे, कहते हैं कि हम अगर बॉन्डिंग करेंगे तो चारों करेंगे, वरना कोई भी नहीं करेगा। तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमने बॉन्डिंग नहीं करनी है। कार्बन बोलता है यार बॉन्डिंग तो करो, वरना मैं स्टेबल कैसे होऊंगा। तो बोलता है इस कंडीशन में हम बॉन्डिंग नहीं कर सकते। तो कार्बन हाइड्रोजन से कहता है कि चलो तुम बताओ मैं क्या करूं ताकि तुम मेरे साथ बॉन्डिंग कर सको। तो हाइड्रोजन इसे 2 कंडीशंस देते हैं। हाइड्रोजन कहते हैं कि पहले तो भैया आप अपने चारों ऑर्बिटल्स को एक जगह ले आओ, मतलब सबकी एनर्जी को क्या कर दो, सेम, ताकि ऐसा नहीं हो कि मुझे 2 जनों को इधर जाना पड़े और 2 जनों को उधर जाना पड़े, या एक को इधर जाना पड़े बाकी को इधर जाना पड़े। आप सारे ऑर्बिटल्स को कहां पर ले आओ, सेम एनर्जी लेवल। और दूसरी चीज, हर एक ऑर्बिटल में क्या क्या कर दो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दो, हम चारों बॉन्डिंग कर लेंगे। अगर ऐसा कर सकते हो तो बॉन्डिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो कार्बन सोचता है कार्बन को करना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्डिंग कार्बन ने करनी है, स्टेबल कार्बन ने होना है। तो कार्बन इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करने की कोशिश करता है। कार्बन जाता है अपने ऑर्बिटल्स के पास, किसके पास जाता है, अपने ऑर्बिटल्स के पास, और इनसे कहता है, इनसे क्या कहता है कि यार तुम चारों ना एक जगह पे आ जाओ और सब अपने अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन कर लो। इस कंडीशन में आ जाओ, सब एक जगह आ जाओ, और सबके पास अगर एक एक इलेक्ट्रॉन रख लिया तुमने, तो मैं तुम सबको एक एक इलेक्ट्रॉन और दे दूंगा, जिससे तुम लोग क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। तो ये ऑर्बिटल्स सोचते हैं कि कह तो सही रहा है, तो ये कार्बन की बात मान लेते हैं। ये एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं और मिक्स होकर चारों कहां जाते हैं, सेम एनर्जी लेवल पे, और सब अपने अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जनरेट कर लेते हैं। यानी कुछ इस पिक्चर को बना लेते हैं। कार्बन के सारे चारों ऑर्बिटल्स मिक्स होकर कहां पर आ जाते हैं, सेम एनर्जी लेवल पर, और सब में क्या हो जाता है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब कार्बन हाइड्रोजन से वापस से कहता है अब तो बॉन्डिंग कर लो। हाइड्रोजन बोलते हैं दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड है, हम आसानी से बॉन्डिंग कर सकते हैं। इस तरह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है और क्या बनता है आपका CH4 मॉलिक्यूल। एक छोटी सी स्टोरी थी जुगाड़ की। इसमें क्या जुगाड़ हुआ, इसमें जुगाड़ हुआ कार्बन एटम्स के ऑर्बिटल्स का। वो कार्बन एटम जिसके पास एक टाइम पर एक ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और बाकी 2 ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, उसकी कोई कंडीशन नहीं थी कि वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता था। लेकिन कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने जुगाड़ किया, इसने अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स किया और मिक्स करके क्या बनाए, 4 नए ऑर्बिटल्स। जुगाड़ क्यों बोला, उसको जितने बॉन्ड बनाने थे उसने उतने ही ऑर्बिटल्स काम में लिए और उनमें उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा दिए। अगर आपने 2 बॉन्ड बनाने होते तो आप 2 ऑर्बिटल्स काम में लेते, अगर आपने 3 बॉन्ड बनाने होते तो आप 3 ऑर्बिटल्स काम में लेते। तो इस तरह से एटम क्या करता है, जुगाड़ करता है। इस जुगाड़ को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होकर CH4 का बनना पॉसिबल नहीं था।
समझ में आता आपको? तो ये एक सिंपल सी स्टोरी थी जो आपको एक्सप्लेन करती है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. नाउ विल मूव विद टेक्निकल टर्म्स कि हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं. ठीक है. So what is hybridization? We'll go with the definition first. The intermixing of atomic orbitals having slight difference in their energies to produce new orbitals having similar energy is called hybridization. The intermixing of atomic orbitals having slight difference in their energies to produce new orbitals having same energy is called hybridization. For example, पिछले एग्जांपल ने कार्बन ने अपने दो ऑर्बिटल्स कौन कौन सा 2s एंड 2p जिनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि दोनों एक ही शेल के ऑर्बिटल्स हैं. तो orbitals having slight difference in their energies if they are intermixed together to form new orbitals. वहां पे पास 4 नए orbitals फॉर्म हो रहे थे तो फॉर्म 4 new orbitals having similar energy. जो orbitals बने थे उनकी energies क्या थी? Same. So this process is called hybridization. Simple intermixing of atomic orbitals जिनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है? बहुत कम. अगर एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल है 2s और दूसरा है 4s, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता है. एक है 2s दूसरा है 3p, इनके बीच में भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता है. हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस क्या होना चाहिए? बहुत कम, बहुत छोटा सा गैप होना चाहिए. लाइक 2s 2p, 2p के साथ 3s कर सकता है, 3s के साथ 3p, 3p के साथ 3d. इस तरह से आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है. लेकिन कभी भी 2s और 3d के बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा. तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन होना है उन ऑर्बिटल्स के बीच में होगा जिनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या है? बहुत कम. सो दिस इज hybridization, the intermixing of atomic orbitals. In simple terms, we can say simple intermixing of atomic orbitals is called hybridization. Now, there are some rules for hybridization which we will follow. Rule number 1. Only orbitals having slight difference in their energies can undergo hybridization. As I have already mentioned, only those orbitals can participate in hybridization which have very slight difference in their energies. Then, second point, the orbitals produced after hybridization are called hybrid orbitals, and only orbitals participate in hybridization not electrons.
अगर आपको याद हो, हमने भी कार्बन का हाइब्रिडेशन देखा था, 2s 2p। यहां पे हाइब्रिडेशन किसका हो रहा था? सिर्फ ऑर्बिटल्स का। ओनली ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर पार्टिसिपेट इन hybridization. Hybridization is defined only for atomic orbitals which have slight difference in their energies. The orbitals formed after hybridization are called hybrid orbitals or hybridized orbitals. Okay? Not hybrid, these are called hybridized orbitals. Then rule number 3, the number of orbitals formed as a result of hybridization will be equal to the number of orbitals participating in hybridization. अगर आपको याद, अगर कार्बनिक हम हाइब्रिडेशन की बात करें तो 2s 2p2, यहां कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे? 4, 1 2 3 4। नए भी कितने जनरेट हो रहे थे? तो जितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स क्या होंगे? फॉर्म होंगे। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर हाइब्रिडेशन विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन. This is your rule number 3, that whatever is the number of molecules participating in hybridization will be equal to the number of orbitals produced after hybridization. Then next rule, orbitals of the same atom can undergo hybridization. Orbitals of two different atoms cannot show hybridization. जैसा अभी आपका मीथेन का केस था, हाइब्रिडाइजेशन किसके ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा था? बिटवीन ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन. देयर वाज नो हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के ऑर्बिटल्स के बीच में होता है. दो अलग अलग एटम्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता है. याद रखना, दो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कभी भी नहीं होंगे. ऑर्बिटल्स जो इंटरमिक्स होंगे वो विल बी द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम. दिस वाज फोर्थ रूल. देन नेक्स्ट वन, so next rule says, that is fifth rule, the hybridized orbitals formed are identical in all respect. आपके पास जो नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स. ऑल रेस्पेक्ट्स मींस शेप, साइज, एनर्जी. सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप सेम होती है, साइज सेम होती है एंड एनर्जी भी क्या होती है? सेम होती है. देन नेक्स्ट रूल, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स possess lower energy than
pure orbitals and thus provide better overlapping. जो भी आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, प्योर sp_d ऑर्बिटल से हमेशा कम होती है, और जो भी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, हमेशा ज्यादा। हमने ओवरलैपिंग में पढ़ा था कि लोअर इज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ग्रेटर विल बी द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड फॉर्म। सो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर एट लोअर एनर्जी देन प्योर sp and d ऑर्बिटल्स। देयरफॉर जब भी आपके पास दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी तो वो प्योर ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग से क्या होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट, hybridized orbitals will show axial overlapping. That is, they will form only sigma bonds. आपके पास जब भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे तो सिर्फ कौन सी ओवरलैपिंग शो करेंगे, एक्सियल ओवरलैपिंग, और हमेशा कौन से बॉन्ड्स बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, देखो ये सारे रूल्स आपको याद नहीं रखने, बस एक बार इन्हें पढ़ते जाओ, हम इन्हें यूज करते जाएंगे, ये आपको अपने आप याद होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इनको बैठ के रट्टा मारना है, नहीं, पढ़ो छोड़ दो, आप जैसे यूज करते जाओगे आपको ये रूल सब अपने आप याद होते जाएंगे। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज 8th one, the hybridized orbitals arrange themselves in such a way that the geometry between, sorry, not geometry, that the repulsion, sorry, that the repulsion between them is minimum. ये जो आपके पास नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं, ये अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, और इस अरेंजमेंट की वजह से ये एक मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, एक प्रॉपर ज्योमेट्री प्रोवाइड करते हैं, एंड देयरफॉर दे प्रोवाइड अ रेगुलर ज्योमेट्री टू अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करेंगे कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, और इस वजह से ये हर एक जिस भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होगा उसे ये एक प्रॉपर ज्योमेट्री प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के बेसिस पर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे ज्योमेट्री इसको। For example, not for example, you write the point. We'll make a table like number of hybridized orbitals then we'll go with geometry and we'll write bond angles. 2. If number of hybridized orbitals are 2, for example, say these are my two hybridized orbitals. See, these hybridized orbitals will be hinged at one point. That is, they will be fixed at this point. You cannot separate them. Now you have to arrange these two orbitals such that repulsion between them is minimum. How you will arrange? Like this, this, or like this. In this case, repulsion between these two orbitals is minimum because they are opposite to each other. So
these two orbitals were arranged themselves in this geometry, which will be called linear geometry. So geometry will be like this, and bond angle will be 180 degree. So if there are two hybridized orbitals, then the geometry will be linear. If there are three hybridized orbitals, then geometry will be trigonal planar. And what is the geometry? Geometry is like this. This is your trigonal planar geometry. This is a trigonal plane. So if I can show you a 3D picture like this, this will be the geometry. This is a plane. This is your trigonal plane. So this is your trigonal planar geometry. In this geometry, the bond angle will be 120 degree. This bond angle will be 120 degree. Then number of hybridized orbitals for, there are 4 hybridized orbitals, then geometry will be tetrahedral. Like this. This is your triangular base. If you extend it like this, this is your tetrahedral geometry, and the bond angle will be 109 degree 28 minutes. Then if there are 5 hybridized orbitals, the geometry is trigonal bipyramidal. We'll call it TBP structure, that is trigonal bipyramidal structure, and the structure is like this. So this is your trigonal plane. And this is your pyramidal structure, one above this triangle and one below this triangle. So this makes a pyramid if you join the corners, and one pyramid downward side like this. That is why we call it trigonal bipyramidal structure. So just keep it simple. Don't draw too much lines, you will get confused. It will be like this. One trigonal plane, one bond above it and one orbital below it. So bond angles are, see, there are 3 bond angles. This bond angle is 120 degree, this bond angle is 90 degree, and this bond angle is 180. There are 3 types of bond angles: 120 degree, 90 degree and 180 degree. This is your trigonal bipyramidal structure, which is when the number of hybridized orbitals is 5. Then we are left with 2 more geometries. If number of hybridized orbitals is 6, then geometry will be octahedral. What is this geometry? This geometry is like this. One above the plane and one. If you join the corners, it will form an octahedron. These are the faces of this octahedron. Similarly, if you join the bottom points also, this will again make an octahedron. So this structure is called an octahedral structure. Bond angles 90 degree, all angles are 90, then this angle is 180. Then the last one, number of hybridized orbitals 7. Geometry will be pentagonal bipyramidal. We will call this structure PBP.
And the structure is like this. You draw a pentagon. One above it, one. The bond angles will be 72 degree, 90 degree and 180. So these are the predicted geometries. Remember, predicted geometries according to the number of hybridized orbitals. The hybridized the hybridization of a molecule will not give its actual structure. Why? We'll discuss it later. But these are the predicted structures. If number of hybridized orbitals are 2, then geometry will be linear. 3, trigonal planar. 4, tetrahedral. 5, trigonal bipyramidal. 6, octahedral. And 7, pentagonal bipyramidal. So on the basis of how much hybridized orbitals are produced, we can predict the geometry of a molecule along with their bond angles. Next, moving forward, we are going to start with types of hybridization. Type of hybridization depends on number of orbitals or types of orbitals participating in hybridization. If we classify all the types, there are numerous types of hybridization like sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, then dsp2 and all other types of hybridization. But in general, if we define, we'll start with sp, sp2 and sp3. We'll study them in detail. Then we'll move on to how we'll calculate hybridization and how we'll calculate geometries. So I'm first starting off with sp hybridization. What is sp hybridization? Its name explains everything. One s orbital, that is s, and one p orbital. These two intermix with each other to form two new sp hybridized orbitals. This is sp and this is sp. See, this is the standard shape. We have taken this shape. A shape of hybridized orbital will be like this. And you need not to remember shapes. This is just for explanatory purpose. So when one s orbital and one p orbital intermix with each other to form two new orbitals, there are two orbitals participating, so orbitals formed will also be 2. So these two orbitals are formed. This hybridization will be called sp hybridization. Since there are two orbitals are generated, so these two orbitals will arrange themselves in space in such a way that the repulsion between them is minimum. So these will arrange themselves like this. This will be your linear geometry. This is one sp hybridized orbital and this is one sp hybridized orbitals with bond angle 180 degree. So hybridization in which one s orbital intermixes with another p orbital to form two new orbitals is called sp hybridization. Now we will go with an example. And what is the example? The example is ethine, C2H2. You must have studied it in 10th class or in previous classes. Ethine is See, I don't know the structure of ethine. I am considering that we haven't studied ethine yet, so I don't know its structure. But what I know is कार्बन इज टेट्रावेलेंट. कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है C2H2 के साथ, क्योंकि कार्बन अगर बॉन्ड बनाता है तो आप कैसे भी कार्बन के 4 बॉन्ड्स को C2H2 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. हम यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स में डील करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कह दिया है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओनली शो एक्सियल ओवरलैपिंग, सो दे विल फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स. तो अगर मैं इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड्स देखना चाहूं तो मिनिमम कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे? देखो C2H2 एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेगा कार्बन के साथ. तो अगर हम इस कंडीशन को ट्रू मान के चलते हैं तो हर कार्बन एटम को मिनिमम कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2. अगर इसे 2 बॉन्ड्स बनाने हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं शेयरिंग के थ्रू, तो इसे कितने ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे? 2.
तो कार्बन अपने सिर्फ कितने ऑर्बिटल्स यूज करेगा? ओनली 2 ऑर्बिटल्स। कैसे? देखो, कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p2, 2s2 2p2। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनना है तो हाइड्रोजन शुड अप्रोच कार्बन एटम। अगर हाइड्रोजन कार्बन को अप्रोच करेगा तो हाइड्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इस स्टेट को हम कहते हैं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, जब उसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई है और वो एक्साइट होकर कहां चला गया है? हायर ऑर्बिटल्स के अंदर, लाइक दिस। ये समझ में आता है? तो ये होगी कार्बन की ग्राउंड स्टेट और ये क्या होगी? इसकी एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा? ये बॉन्डिंग करेगा। मैंने आपसे क्या कहा था? हाइब्रिडेशन इज जुगाड़। कैसा है जुगाड़? यहां कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2। आपके पास ऑर्बिटल कितने हैं? 4। तो आप चारों ऑर्बिटल यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ कितने ऑर्बिटल यूज करोगे? 2। कौन कौन सा? दिस एंड दिस। आप कभी भी ये और ये यूज नहीं कर सकते, ये और ये यूज नहीं कर सकते। यू विल यूज इन ऑर्डर्स। ये और ये ऑर्बिटल आप यूज करोगे, एक s और एक p। These two orbitals will mix and will show sp hybridization. So अब आपका जो कार्बन है उसका सिनेरियो क्या बन गया है? उसके पास 2 sp hybridized orbitals हैं and it is left with 2 p orbitals. Say this was px, this was py, this was pz. तो ये क्या होगा आपका? py और ये क्या होगा? pz. नाउ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों sp में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी दोनों py और pz में क्या होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आता है? तो अभी मेरे पास जो कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम के पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिन्हें मैं रेड चॉक से ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज 1 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दिस इज अदर sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सिमिलरली मेरे पास एक कार्बन एटम और है, उस कार्बन एटम के पास भी क्या होंगे? 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। यहां पर इन दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो कार्बन है, इसका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसके sp के साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग शो करेगा और इस ओवरलैपिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। एज रूल्स में हमने पहले लिखा है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कौन सी ओवरलैपिंग शो करेंगे? एक्सियल ओवरलैपिंग। तो कौन से बॉन्ड्स बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड्स। इसी तरह इनके पास, इसके पास भी एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपका हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम क्या करेगा? इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली यहां पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्या बनाएगा? सिग्मा। बन गए सिग्मा बॉन्ड्स। अब हम देखते हैं कार्बन के पास क्या बचा है। अगर हम ध्यान से देखें तो कार्बन के पास अभी भी 2 p ऑर्बिटल्स बचे हैं, py एंड pz। py pz दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। यानी इस कार्बन के पास एक बचा है py ऑर्बिटल से, ये py है आपका, जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। It is also left with one pz orbital which will be perpendicular to this pz होगा। Similarly इस कार्बन के पास भी एक py ऑर्बिटल बचा है और एक pz ऑर्बिटल बचा है, like this। जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मानते हो? कोई प्रॉब्लम? These 2 p orbitals have their axis parallel to each other। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होती है, कौन सी ओवरलैपिंग शो करते हैं? दे शो साइडवेज ओवरलैपिंग एंड फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो इस p और इस p के बीच में क्या बनेगा? एक पाई बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली इस p ऑर्बिटल और इस p ऑर्बिटल के बीच में क्या बनेगा? एक पाई। तो पे कितने पाई बॉन्ड बने? 2। सारे ऑर्बिटल्स काम में आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स काम में आ गए। अगर हम यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में देखें तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो इसके स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इसलिए हम क्या कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और 2, देखो दिस इज 1 सिग्मा एंड दीज 2 पाई। दैट इज व्हाई अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। पहले कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। उसके बाद कौन से बॉन्ड बनेंगे? पाई। सिग्मा के बिना पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा याद रखना। पहले सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और फिर
पाई बॉन्ड, यानी एक मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही होगा। समझ में आता है? तो ये थी आपके पास इथाइन और ये था आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ आप लोग समझ गए होंगे sp2 का मतलब क्या होगा। sp2 मींस 1s and 2p orbitals. So sp2 hybridization in which 1s orbital and 2p orbitals will form 1 plus 2. How many orbitals? 3. There will be 3 orbitals formed with 3 sp2 hybridized orbitals will be formed by the mixing of 1s and 2p orbitals. Now sp2 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? Trigonal planar. So these 3 orbitals will arrange themselves in a trigonal planar geometry like this with a bond angle of 120 degree. Got it? तो sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होता है आपके पास? यहां 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। लेट्स से एग्जांपल देखते हैं sp2 के लिए भी हम। द एग्जांपल इज C2H4. अगेन यू नो इट, दिस इज इथीन। अगर मैं इथीन की डिजायर्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कार्बन होंगे, यहां पे मैं दो हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं इक्वली लाइक दिस, और एक कार्बन कार्बन की चोन होगा। सो दिस विल बी द पॉसिबल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन सिग्मा बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड्स। यहां पर हर कार्बन एटम को कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? ईच कार्बन वांट्स टू मेक 3 बॉन्ड्स। तो कितने ऑर्बिटल्स काम मिलेगा? 3 ऑर्बिटल्स। तो अगर हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की बात करें वापस से, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या था? कार्बन 2s में 1 इलेक्ट्रॉन था और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। कार्बन को कितने बॉन्ड्स बनाने? 3। कितने ऑर्बिटल्स काम मिलेगा? 3। तो यहां पे ये एक s और बाकी 2 p ऑर्बिटल्स काम मिलेगा, और कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेगा? sp2। सिंस यहां पे 3 ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं तो नए भी कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3। सो दिस कार्बन विल हैव 3 sp2 hybridized orbitals, 1, 2 and 3, and 1 p orbital, that is your pz, like this होगा। अब देखो मेरे पास फिर से 2 कार्बन एटम्स हैं और हर कार्बन एटम कौन से स्टेट में? sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर। तो 2 कार्बन एटम्स, 1 this and 1 like this। इसके पास एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक नहीं सॉरी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे। सेम इज फॉर दिस कार्बन, और सबके अंदर क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन और ये कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे और यहां पे क्या बना देंगे? एक सिग्मा बॉन्ड। फिर इन ऑर्बिटल्स से बॉन्डिंग करने कौन आएगा? हाइड्रोजन। सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल काम में आ गए। मैंने आपसे पहले भी कहा था हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक्सियल ओवरलैपिंग शो करेंगे, इसलिए पहले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के थ्रू आप क्या बना दो? सारे सिग्मा बॉन्ड्स। अब कार्बन के पास क्या बचा है? इस कार्बन के पास एक pz ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सेम pz ऑर्बिटल इज विद दिस कार्बन आल्सो। दोनों की एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों कौन सी ओवरलैपिंग शो करेंगे? साइडवेज, और क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। तो यहां पे अगर इसके स्ट्रक्चर बनाए तो 2 कार्बन के बीच में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, देन H, देन H। तो ये होती है आपके पास इथीन की स्ट्रक्चर। इसका मतलब एक डबल बॉन्ड में एक होता है सिग्मा और एक होता है, this is 1 sigma and 1 pi. So double bond will contain 1 sigma bond and 1 pi bond. So this is your sp2 hybridization. Then we have further one more type of hybridization, explanatory type of hybridization, that is sp3. So what is that? जिसे हम पहले भी देख चुके हैं in CH4. So we'll go with example. That is your CH4. अब ये तो हमें पक्का पता है कि CH4 में हर कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4। तो उसको कितना ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे? 4। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में ऑब्जर्व करें तो कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को बॉन्ड भी कितने बनाने हैं? 4। तो अब की बार इन 4 ऑर्बिटल्स को काम मिलेगा और कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेगा? sp2।
3, and it will have 4 sp3 hybridized orbitals which will contain 1 electron each. These 4 sp3 hybridized orbitals will arrange themselves in a tetrahedral geometry somewhat like this. इनका बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और इन सब में क्या होगा एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन जिनके साथ हाइड्रोजन एटम क्या कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग और क्या बना लेंगे 4 सिग्मा बॉन्ड्स दैट इज 4 सिंगल बॉन्ड्स। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी सी एच 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 एंड। इसलिए एक सिंगल बॉन्ड को हम किससे कंपैरेटिव मानते हैं एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपके पास कुछ जनरल टाइप थे sp sp2 sp3 हाउ सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड हाउ पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड why a triple bond contains 1 sigma and 2 pi bonds why a double bond contains 1 sigma and 1 pi bond। so ये थे आपके पास बेसिक टाइप्स। इसके अलावा आपके पास और भी कई टाइप का हाइब्रिडेशन होता है तो अभी हम लिस्ट करेंगे सबको। तो योर नेक्स्ट हेडिंग इज डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन स्टेट। डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो हमारा मेन टास्क है वो अब स्टार्ट होता है। एक्चुअली हमें कुछ किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मूला पता है तो हम उसका हाइब्रिडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। हाइब्रिडेशन स्टेट निकालने के बाद हम उसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद डिटरमिनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन स्टेट। यहां पे हम 2 मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें हम पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं मेथड नंबर 1 दैट इज स्टेरिक नंबर मेथड। ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं जब हमें कंपाउंड के स्ट्रक्चर पता नहीं है। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो हम यूज करेंगे इस मेथड के। हम देखेंगे क्या होते हैं लिमिटेशंस। बट ये मेथड हम यूज करते हैं जब हमें कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन हो और हमें उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो वी कैलकुलेट स्टेरिक नंबर x, दिस इज अ नंबर जिसे हम कहेंगे x, एंड द फॉर्मूला इज हाफ इनटू s प्लस v माइनस q। ठीक है, यहां पे हर एक टर्म का अपना एक नोटेशन है, एक मतलब है। s गिव्स मी नंबर ऑफ, it gives me number of monovalent surrounding atoms। ऐसे नंबर ऑफ, ये तो आप समझ ही गए हैं कि मैंने इसे रेड से क्यों लिखा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है एटम शुड बी मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट मींस जिसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, आइदर +1 और -1। हम उन एलिमेंट्स को या उन एटम्स को सराउंडिंग एटम्स में कंसीडर नहीं करेंगे जिनकी वैलेंसी कितनी होती हो 2 होती हो 3 होती हो, यानी 1 से ज्यादा होती हो। 1 के अलावा कुछ भी है हम उन्हें सराउंडिंग एटम्स में कंसीडर नहीं करेंगे। देन V इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम। हमने देखा था सेंट्रल एटम क्या होता है, ठीक है। देन Q इज द चार्ज ऑन मॉलिक्यूल एंड यू हैव टू यूज दिस चार्ज विद इट्स साइन। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के साथ यूज करना है, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन के साथ यूज करना। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज नहीं करोगे, आप इसका साइन भी यूज करोगे। So the formula is half s plus v minus q. Once we have got the value of x, we can depict the type of hybridization. और जैसे ही मुझे हाइब्रिडेशन पता लग गया मैं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी बता सकता हूं। If value of x is 2, hybridization will be sp, geometry will be linear. If value of x is 3, hybridization will be sp2, geometry will be
trigonal planar. 4 sp3 geometry will be tetrahedral. 5 sp3d geometry will be trigonal bipyramidal. 6 sp3d2 the geometry will be octahedral. And if 7 it's sp3d3 and geometry is pentagonal bipyramidal. So once we have got the value of x, we can depict hybridization and we can predict the geometry of that given molecule. Now let's see how we'll use this formula. कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल फर्स्ट CH4 अभी भी देखा था हमने, which is central atom, carbon is your central atom and hydrogen will be surrounding atoms. So if I calculate the value of S, S is number of monovalent, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, so S की वैल्यू कितनी हो गई 4. V, V is valence electrons of central atom, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने एटम होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, so it's 4. क्या इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है, नहीं है, तो Q की वैल्यू कितनी हो गई 0. So X is equals to half into 4 plus 4 minus 0, that is 8 by 2. 4. 4 means sp3 hybridization. क्लियर है. तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हमारा, फर्स्ट एग्जांपल. लेट्स से CO2, मुझे CO2 में हाइब्रिडेशन पता करना है. S, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट एटम, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है -2, तो हम ऑक्सीजन को S के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम S में सिर्फ उन्हें कंसीडर करते हैं जिनकी वैलेंसी कितनी होती है 1. सो S विल बी 0. V, what is V? V is number of valence electrons in the central metal atom, sorry central atom. Central atom is carbon, valence electrons are 4. Charge 0. So hybridization will be half into 4 plus 0 minus 0, that is 2. 2 के लिए hybridization क्या आता है sp. So in CO2 carbon is sp hybridized. For example, if I write ClF3, S, फ्लोरीन, फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है -1, that is fluorine is also monovalent, so S की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3. V, V is valence electrons in the central atom. क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7. चार्ज 0. X is half into 7 plus 3 minus 0, that is 5. 5 के लिए कौन सा हाइब्रिडेशन आता है sp3d. क्लियर. सो मोर एग्जांपल्स लाइक चार्ज्ड, हम चार्ज स्पीसीज लेते हैं like ClO4 minus. Surrounding atoms, this is central atom, so this is surrounding atom. Surrounding atom कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2. 0. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7. चार्ज, चार्ज इज -1. So what will the value of X? X will be equal to half 7 plus 0 minus -1. That is 8 by 2. 8 by 2 is 4. For 4 hybridization will be sp3. So in ClO4 minus, chlorine will be sp3 hybridized. Got it? For example, NH4 plus. S, surrounding atoms are hydrogen. Value of S will be 4. V, in the valence shell of nitrogen there are 5 atoms, 5 electrons, sorry. So V is equal to 5. Q, charge is +1. So X will be equal to half into S plus V minus Q. This will again give you 4. 4 means sp3. For example, this compound
XeO2F2. S, surrounding atoms, this will be your central atom, least electronegative and less in number. Surrounding atom, oxygen is divalent, so will not count it. Fluorine is monovalent, so 2. Valence electrons, 8. Xenon is a noble gas and valence electrons are equal to 8. No charge, so Q is equals to 0. So half into 8 plus 2 minus 0, that is 5. 5 means sp. So by using this formula, we can calculate the hybridization state of a given molecule whose formula is given to us. You'll simply apply this formula, you'll calculate the value of X, and by value of X, you can calculate the hybridization state. Again, keep in mind, while using the value of S, you will use only monovalent atoms. आप लोग यही गलती करते हो. आप लोग ले लोगे ऑक्सीजन को भी, आप लोग ऑक्सीजन को ले लोगे या ऐसा कोई भी एटम, नाइट्रोजन हो गया, जो भी मोनोवेलेंट है, सिर्फ आपको उन्हें लेना है. डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट को आपको इंक्लूड नहीं करना. यू विल टेक हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, सेकंड ग्रुप मेटल्स, नॉट सेकंड ग्रुप मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप मेटल्स, वो तो आपको मिलेंगे नहीं, बट हेलोजेंस और हाइड्रोजन्स, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? हमेशा 1, and you always consider them. Clear? So this is how we'll calculate hybridization state by using method 1. Now there is some homework for you and you'll do it by your own. So you have to calculate the hybridization state in following molecules. I'm starting off with, say, ClF3, PCl3, we'll go with PCl5, NH3, SO2, SO3. You can take ClO3 minus, I3 minus. You can go with XeF4. You can go with XeF2, XeF6, XeOF6, XeO3, XeOF2, SbF5. So this is homework for you. You have to predict the hybridization state of each atom, of each central atom, and you have to predict the geometry of these molecules. So this is method 1 through which we will calculate hybridization state, but there are some limitations of this method. So what are the limitations? We are going to discuss those. First, you note down these molecules. This is your homework. Okay, now we'll discuss the limitations of this method. That what are the limitations? There are following limitations. First, this rule is not applicable for molecules containing more than one central atom, like C2H2, C2H4. Those molecules which contains more than one central atom, this rule cannot be applied to them. You will not apply this rule to them. Second, not applicable for odd electron molecules. आपने odd electron molecules पढ़े like NO, NO2, etc. This rule is also not applicable for odd electron molecules. And third, it is not applicable for oxy acids. Oxy acids like H2SO4, H3PO4, like these. So these are three limitations. You cannot apply this rule to these three categories of compounds. Now this was the method 1. We have another method, method 2, through which we can also calculate the hybridization state of
an atom in a given compound. So what is that method? We are going to discuss it. So we are moving with method 2. It's a very simple method. See, in this method, we calculate total number of sigma bonds formed by the central. इस मेथड में आप सिंपली क्या करोगे, आपका जो सेंट्रल एटम है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इज इट फॉर्मिंग, बस आपको ये चेक करना है. While calculating sigma bonds, you will keep in mind these things. First, each single bond will be considered as one sigma bond. ये तो आप जानते ही हो. फिर डबल बॉन्ड will contain one sigma plus one pi and triple bond will contain one sigma plus 2 pi. Then each lone pair will be treated as a sigma bond and each coordinate bond will be treated as a sigma. So these 4 points you have to consider. If there is a lone pair, it will be considered as a sigma bond. If there is a coordinate bond, it will be considered as a sigma bond. So when you calculate total number of sigma bonds, you can calculate hybridization. Again, same number of sigma bonds and hybridization. Two sp3, sp2 4, sp3 5, sp3d 6, sp3d2 and 7 is sp3. It's the same. If you have 2 sigma bonds, sp hybridization, 3 sigma bonds, sp2, 4, sp3 and so on. So what you have to do is simply you have to calculate the number of sigma bonds formed by the central atom and you can calculate its hybridization state. In previous years in JEE exam, questions are frequently asked over this method, that is calculation of number of sigma bonds. This method is applicable when you know the structure of compound. For example, in hydrocarbons, like I am drawing a hydrocarbon CH3 CH double bond CH single bond CH2 C triple bond, like this. यहाँ पे सबके सब क्या हैं? Central atoms. All carbons are central atoms. So you have to predict the hybridization state of each central atom. जैसे हम बात करते हैं इस कार्बन की. In this carbon, ये कार्बन कार्बन बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है और बाकी इन तीनों हाइड्रोजन के साथ भी क्या बना रहा होगा ये? Single bonds, because hydrogen can only form a single bond. Each single bond is a sigma bond. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma. This carbon is making 4 sigma bonds. For 4 sigma bonds, hybridization will be sp3. So this carbon is in sp3 hybridized state. For this carbon, 1 sigma with this hydrogen. This is a double bond. A double bond contains 1 sigma and 1 pi. So 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. For 3 sigma, hybridization will be sp2. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, sp2. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, sp3. 1 sigma, 2 sigma, sp. 1 sigma, 2 sigma. So simple. You just have to calculate the number of sigma bonds formed, and you can predict the hybridization state of central atom. It's very simple. JEE में बहुत बार से क्वेश्चन आ चुके हैं. For example, in the latest IIT JEE 2012. आपको एक कंपाउंड दिया था विच इज कॉल्ड अलीन. अलीन जेई का बहुत फेवरेट कंपाउंड है. अलीन से जेई पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है. अलीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इट्स अ हाइड्रोकार्बन. इट्स स्ट्रक्चर इज दिस. ऑब्वियसली आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होना जरूरी था.
लेकिन अगर आपने कभी ये पढ़ा भी नहीं है तब भी आप कॉमन सेंस से इसके स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर 3 कार्बन है तो ऑब्वियसली उनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे और आपको 4 हाइड्रोजन अरेंज करने हैं, तो 2 टर्मिनल्स पे 2-2 हाइड्रोजन दे दो, बीच में क्या बना दो, डबल बॉन्ड्स। आपको बताना था कि इसमें कितने टाइप का हाइब्रिडेशन प्रेजेंट है। आपके पास 4 ऑप्शंस थे, लाइक sp2 sp3 sp sp2 sp sp3 और d वाज sp sp2 एंड sp3। इस तरह का आपके पास ऑप्शन था। यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन शोन बाय कार्बन एटम्स। तो हम इस कार्बन की बात करते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा हाइब्रिडेशन sp, 1 sigma 2 sigma 3 sigma hybridation sp. So the types of hybridation shown were sp and sp. So this was the simple question which was asked in IIT-JEE 2012. अगर आप सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करना जानते हो तो आप इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन स्टेट बता सकते हो। इस मेथड का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप इसे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बस आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। So this was the concept of hybridization. This was valence bond theory, which gives the idea of shape of a molecule, which explains the bonding in molecules. तो यहाँ आपका हाइब्रिडेशन खत्म होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के 2 पार्ट खत्म होते हैं। आपको हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया है तो सबसे पहले आपको उसके अंदर हाइब्रिडेशन निकालना आना चाहिए। जब तक आपको हाइब्रिडेशन नहीं आएगा आप इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में कोई भी बात नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हाइब्रिडाइजेशन इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। आप ये जो सब कुछ कर रहे हो एक्चुअली ऐसा एक मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हाइब्रिडेशन के बेसिस पर हम इन मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग को सबसे इजीली एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसलिए हम मान के चलते हैं कि ऐसा कुछ होता होगा जिसकी वजह से बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। तो अगर कहीं आपसे कोई पूछता है दैट हाइब्रिडाइजेशन इज थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, इट्स अ theoretical concept. In the next class we will further move on the next part of VBT, which is our valence shell electron pair repulsion theory, जिसके बेसिस पर आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हो। ज्योमेट्री बताने के लिए सिर्फ हाइब्रिडेशन सफिशिएंट नहीं है, आपको VSEPRT भी पता होनी चाहिए, उसी के बाद आप एक मॉलिक्यूल की ट्रू शेप बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास विल मूव विद VSEPRT।